Hello people, welcome to the session. I'm Rachita Sachdeva, your Vedanta Chemistry Master Teacher and I hope you guys are absolutely doing amazing. सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, आस पड़ोस भी सब बढ़िया होगा. Okay guys, so आज हम लोग start करने वाले all in-text questions of Is Matter Around Us is Pure, which is your second chapter of chemistry portion. And in-text questions, वो questions जिनको आप लोग पूछते नहीं हो, भाई इग्नोर मार के निकल जाते हो आगे इतने प्यार से और बाद में रोना आता है, रिग्रेट करते हो जब एग्जाम में आते, अरे ये क्वेश्चन तो वहां देखा था, ये कुछ देखा सा क्वेश्चन है, कहाँ है ये एनसीईआरटी के अंदर. भाई ये वही है एनसीईआरटी के बीच में, उसी चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं, दोज आर योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन और उनका इंपॉर्टेंस भी आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बराबर होता है. एंड यू विल गोइंग टू फाइंड के क्वेश्चंस एज इट इज चिपका के दे देते हैं एग्जाम के अंदर. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, you should not miss them, we should not miss them. So let's solve them. Let's get ourselves started. My stars, every star shines a little differently. Absolutely rightly said. It's so deep, it's so deep message. Every one of us are different guys. आप अलग हैं, आपके friends आपसे अलग हैं, मैं अलग हूँ, मेरे friends मुझसे अलग है. तो everyone shines in their own manner. उनके पास क्या है हमें नहीं परवाह होनी चाहिए. What we can achieve, we should aim for that. We should focus on that. So always be happy of what you have and shine it in your own ways. अपने हिसाब से. Okay, starting up with the very first question. What is meant by substance? Substance क्या होता है? Element भी तो substance है, molecule भी substance है, ये भी substance है. This is also substance. सब्सटेंस ही सब्सटेंस है. मैटर्स आर सब्सटेंस एक्चुअली. कोई भी चीज जिसके अंदर मास है, दे ऑक्यूपाई स्पेस, वो सब्सटेंस में आता है, चाहे वो एयर पार्टिकल्स हो, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो. दीज आर ऑल सब्सटेंस. सब्सटेंस का मतलब होता है दोज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर जिनका अपना एक डेफिनेट प्रॉपर्टी होता है, उनका एक अपना कॉम्पोजिशन होता है. सो यस, pen has its own property. We as humans has our own property. Table, chair, oxygen, they have different properties. Altogether, उनका अपना एक composition है. So those are called as substance. Simple question था. Kickstart for this session. Good. Chak de fatte guys. Let's solve some more chemical locha. List the points of differences between homogeneous and heterogeneous mixture. बहुत ही simple question है, but जब भी आप difference लिखेंगे, minded guys, हमेशा आप tabular form में लिखेंगे, table के form में लिखेंगे, ठीक है? So you will put a proper table और दोनों तरफ एक जगह homogeneous, दूसरी तरफ heterogeneous. Homogeneous का मतलब क्या होता है? Homo बोले तो same. Homo means same or uniform. Hetero means different or not uniform. Means when particles are not uniformly distributed, जैसे sand in water है, या cereals हम milk में डाल के खाते हैं, तो they are not uniformly distributed. एक चम्मच में कुछ ज़्यादा cereals आ सकते हैं, एक में कम आ सकते हैं. ऐसे ही fruit चाट का आपके पास bowl है, तो first bite में you might get some other fruits, in second bite you might get different fruits. That's kind of a mixture called as heterogeneous mixture. Homogeneous mixture जहाँ पे uniform composition है throughout. पहला sip लेमनेड का लोगे बिल्कुल वैसा ही टेस्ट करेगा जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, तो टेस्ट इज सेम थ्रू आउट. दैट्स homogeneous mixtures. Now looking here, as I told you, have to always give a difference. डिफरेंस जब पूछ रहा है तो टैबुलर फॉर्म में देंगे ऑलवेज गाइस. सो पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, दैट्स होमोजीनियस का केस. पार्टिकल्स इन हेट्रोजीनियस कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, दे आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. आप उनको देख भी सकते हो फ्रॉम योर नेकेड आइज, लेकिन होमोजीनियस को आप बाउंड्रीज में नहीं देख सकते. यू कैन नॉट सी दोज पार्टिकल्स बिकॉज होमोजीनियस मिक्सचर ही आपके सोल्यूशंस होते हैं. पार्टिकल साइजेस एक्सट्रीमली स्मॉल. इन फैक्ट हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे भी इनको देख नहीं सकते. Your third important question of in-text, differentiate between okay, let me shift. How are salt solution and suspension different from each other? Salt क्या है? Salt is actually a type of colloid guys. Colloid के different types होते हैं. Sol होता है, solid sol होता है, aerosol होता है, right? So sol is one of the colloid. तो यहाँ sol के अंदर हम सारी colloid की properties लिख देंगे. In
other that is solutions and suspension we all know. अगर हम लोग बात करते हैं सोल्यूशन की ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल, तो सोल्यूशन के अंदर दे हैव particle size less than 1 nanometer. It will not be visible through your naked eyes, है ना, cannot be separated, cannot be separated. अब अगर हम लोग जाते हैं सस्पेंशंस के केस पे, इन केस ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर. आप इनको अपने खुली आंखों से देख सकते हो. यू कैन सी देम थ्रू योर नेकेड आइज. सो यस, वी कैन सी देम. Right now they will also settle down at the bottom if you keep them undisturbed. Do they don't show Tyndall effect? Definitely they do show Tyndall effect. Do solution show Tyndall effect? No, they cannot show Tyndall effect. Can suspension be separated? Yes, they can be separated by filtration technique. Now once we come to Sol, अगर हम लोग Sol पे आते हैं, Sol is actually a colloid. कोलॉइड बोले तो ये हेट्रोजीनियस है. हेट्रोजीनियस है लेकिन दिखने में होमोजीनियस है. पार्टिकल साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है. येस, दे कैन बी सेपरेटेड बट बाय अ स्पेसिफिक टेक्निक कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन. Will particles settle down at the bottom? No, they will not settle down at the bottom. ठीक है. Can particles be visible through naked eyes? No, you cannot see particles from naked eyes. So ये मोटा मोटा difference है between solution, sol and suspension. Examples देंगे एक एक. So sol heterogeneous because it's a type of a colloid, solution homogeneous, and suspension it's clearly heterogeneous. Now size of particle 1 to 1000, less than 1 nanometer, more than 1000 nanometer. Tyndall effect देखे तो exhibit, yes, hetero है तो Tyndall effect देगा ही देगा भाई, उससे कोई नहीं बच सकता है. heterogeneous में पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है बॉस कि लाइट उस पर पड़ते ही स्कैटर हो जाती है. That changes its pathway. So yes, both hetero will show the Tyndall effect, but solution will never ever show Tyndall effect. लेकिन अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, may or may not exhibit. इसका क्या मतलब है? अभी तक तो हम यही पढ़ते आए हैं मैम कि सस्पेंशन में तो they will going to show Tyndall effect. may not क्यों लिखा है? तो भाइयों और बहनों एक एग्जाम्पल लेते हैं. चॉक इन वाटर. ठीक है, चॉक इन वाटर में हमने चॉक डाला, पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड. वंस दे विल सेटल डाउन तो ऊपर का सोल्यूशन क्लीन हो गया. सोल्यूशन इज क्लीन नाउ. तो उसके थ्रू जब हम टॉर्च लाइट पास करते हैं, दैट लाइट विल पास स्ट्रेट. वो इधर उधर नहीं भटकेगी बिकॉज नाउ इट बिकम स्टेबलाइज. जब हमने उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया है, वो पार्टिकल्स नीचे आके सेटल हो गए हैं. नाउ इट्स अ क्लियर वाटर ऊपर, तो उसके थ्रू आप लाइट डालोगे तो इट विल नॉट गोइंग टू शो यू अ टिंडल इफेक्ट. लेकिन अगर पार्टिकल सस्पेंडेड है तो एकदम मचक के टिंडल इफेक्ट देगा, वो आराम से टिंडल इफेक्ट देगा. राइट नाउ कमिंग अप टू अपीयरेंस, सॉल हैज यूजुअली ग्लासी एंड अ क्लियर काइंड ऑफ अपीयरेंस. एकदम साफ होते हैं एंड यू लुक लाइक कि वो होमोजीनियस है, बट दे आर एक्चुअली हेट्रोजीनियस. अनक्लाउडेड एंड क्लियर, बिल्कुल क्लाउडीनेस ही नहीं होती है यहाँ पे. एंड इन केस ऑफ सस्पेंशन दे आर क्लाउडी एंड ओपेक लाइक एज वी डिस्कस चॉक इन वाटर. विजिबिलिटी इन केस ऑफ सॉल, दे विल बी विजिबल विद द माइक्रोस्कोप. अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे हम इनके पार्टिकल्स को देख सकते हैं विच आर होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो जब ये होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो हमारी आंखों को ये दिखता है कि बॉस दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, बट एक्चुअली में हम इनको सेपरेट कर सकते हैं. पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए असलियत में ये हेट्रोजीनियस होते हैं, दिखने में हमें होमोजीनियस लगते हैं. सॉल्यूशंस नॉट विजिबल, ऑब्वियसली विजिबिलिटी आएगी नहीं, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं. सस्पेंशंस के केस में आराम से दिखते हैं, पार्टिकल्स एकदम सैंड इन वाटर, चॉक इन वाटर सब दिख रहा है. Now, moving on to your next question, to make a saturated solution of 36 grams of sodium chloride is dissolved in 100 grams of water in 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. Simple है boss, बहुत straightforward है. That is,
सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड है आपके पास, दैट इज NaCl। ठीक है, NaCl क्या है? आपका सोल्यूट है, बिल्कुल। आपको इसको किस में डिसॉल्व करने को बोला है? पानी के अंदर। वो कितना है? 100 ग्राम्स है। टेम्परेचर दे दिया है उसे आपको 293 केल्विन, और वो बोल रहा है फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यहाँ पे टेम्परेचर का कोई अभी लेना देना नहीं है ड्यूरिंग कैलकुलेशन। आपके पास दोनों ग्राम्स में है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई और बहनों? मास बाय मास परसेंटेज, जहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, या मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 36। क्या हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन है? नहीं है। मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकलेगा? जब हम लोग सोल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं तब जाके हमें सोल्यूशन मिलता है, और यहाँ पे हमारे पास सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, बट अलग अलग है। Why not to add these masses together? So let's do it. 36 plus 136, that 36 plus 100 gives you 136 into 100. तो क्या आएगा आंसर इसका? निकालिए तो जरा, enlighten me with your knowledge in chat box। फटाफट से कैलकुलेट करके परसेंटेज बता दो quickly. I will come and check there guys, and if you're getting this answer, absolutely hats off performance. It is 26.47%. Very good. Perfect. Okay. Moving on to your next question. Classify the following as chemical and physical changes. आपको chemical और physical changes को classify करना है। तो यहाँ पे cutting of trees क्या है? काटते जाओ काटते जाओ। ट्री चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस ट्री का प्रॉपर्टी तो वही रहेगा ना, इवन इफ यू कट इट इनटू स्मॉल पीसेस और इवन इफ इट इज लार्जर पीस, सो इट विल बी अ फिजिकल चेंज। नाउ मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, मेल्ट करा है बटर, चाहे पिघला हुआ लिक्विड है तब भी तुम उसको बटर को लगा सकते हो ब्रेड पे, चाहे वो पिघला हुआ नहीं है तब भी आप उसको लगाओगे तो भी वो सेम टेस्ट देगा। सो बोथ ऑफ दीज काइंड ऑफ चेंजेस आर फिजिकल चेंज। देन रस्टिंग ऑफ अलमीरा, रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। रस्टिंग में भाई बहुत सारा केमिकल लोचा होता है भाई। केमिकल लोचा क्या है? आयरन जब लगातार ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो एक ब्राउन कलर का रस्टी फ्लेकी सा ना एक लेयर क्रिएट हो जाता है जिसे हम कहते हैं रस्ट। Fe2O3.xH2 is the formula of rust। तो मैं आप लोगों को रिएक्शन दिखा देती हूँ, यू विल गेट एन आइडिया। आयरन के ऊपर जब ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर का अटैक होता है दैट गिव्स यू Fe2O3.xH2O, और इससे हम कहते हैं रस्ट। ठीक है, ये रस्टी कलर जो होता है, ब्राउन वाला जो कलर आता है, वो इस कंपाउंड की वजह से आता है। सो डेफिनेटली बॉस काफ़ी केमिकल चेंजेस हो चुके हैं यहाँ पे। सो येस, रस्टिंग ऑफ एन अलमीरा इज अ केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को अगर हम लोग स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिक्विड भी H2O है, स्टीम भी H2O है, तो H2O तो H2O ही है ना, उसमें कोई केमिकल फॉर्मूला का चेंज, केमिकल कॉम्पोजिशन तो नहीं बदला है। सो इट्स अ फिजिकल चेंज। So first two, physical change, boiling of water, physical change. Passing of electric current through water and water breaking down into hydrogen and oxygen. पानी को हमने gases में convert कर दिया है, घोर chemical change. So it's a chemical change. Next, dissolving common salt in water. Common salt अगर पानी में हम dissolve करते हैं तो कोई ऐसी properties change नहीं होंगी, they just dissolve into each other. So it's a physical change. Then making of a fruit salad with raw fruits. Raw fruits के साथ जब हम लोग fruit salad create करते हैं तो क्या होगा? It's a mixture. मिक्सचर के अंदर कभी भी केमिकल चेंजेस नहीं आते हैं। सो इट इज ऑल्सो योर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज एंड बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। कुछ भी चीज में आग लगा देंगे तो दैट विल बी योर फिजिकल चेंज, सॉरी केमिकल चेंज। आग लगाना, डिके होना, बर्निंग, डिकेइंग, राइपनिंग, ये सब केमिकल चेंजेस में आता है। सो दिस इज योर केमिकल चेंज। ओवरऑल वी हैव
These many physical change, cutting of trees, boiling of water, melting of butter, making a fruit salad and dissolving common salt, ये सब physical change है. Rusting of almirah, chemical change. Electric current pass करना water में, that is also a chemical change, and burning is also chemical locha. Okay guys, I hope that is clear to you. Moving on to your next question. Try segregating the things around you as a pure substance or mixture. चलो ढूंढो अपने आसपास चीजें ढूंढो. आई एम ऑल्सो सर्चिंग, यू ऑल्सो सर्च. हमारे आसपास हमें ऐसे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर ढूंढना है. ठीक है, देखते हैं आप कितने निकाल पाते हो और मैं कितने निकाल पाऊंगी. लेट्स डू इट. मेरे पास प्योर सब्सटेंस में यहाँ पे पानी रखा है. ठीक है, पानी मिल चुका है मुझे. मिक्सचर क्या है? ओह, गोल्ड. गोल्ड इज अ प्योर सब्सटेंस. गोल्ड है मेरे पास. आई एम नॉट शोइंग इट ऑफ गाइस. ठीक है, एंड व्हाट एल्स? मिक्सचर में क्या है? यहाँ पे मिक्सचर में कोई ना कोई अलॉय होना चाहिए. दैट वुड बी अ मिक्सचर. सो ओवरऑल अगर आपके आसपास कोई भी मेटल है वो प्योर सब्सटेंस में आएगा, क्योंकि प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या क्या आपके लैंड करते हैं? एलिमेंट्स लैंड करता है और कंपाउंड लैंड करता है ना. कंपाउंड इज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. मिक्सचर वैसे एयर हो सकता है. एयर इज अ मिक्सचर जहाँ पे हम लोग हैं अभी. एलिमेंट्स के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ठीक है, तो अभी हो सकता है कि इस चेयर में कोई मेटल हो. So that could also be one of my pure substance. So water, salt, iron, gold, silver, they are pure substance. Mixtures क्या हो गए? Soil, sand, air, steel, paper. Paper, okay, yes, milk. These are all considered as mixtures. ठीक है, do let me know what you were surrounded with. क्या क्या चीज़ें आपके पास थी and what things you have picked as mixtures and pure substance. Next question is your homework. Do not forget to complete it. भाई रुक जा, कहीं नहीं जाना है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे. Identify the solutions among the following mixtures: soil, sea water, air, coal and soda water. आपको इनमें से mixtures निकालने हैं. तो बूझो तो जाने क्या बोल रही पब्लिक. Do let me know in the chat box. I will come there and read your answers. So do not forget to press the bell icon to get more videos like this. खूब सारे questions solve करेंगे, धमाका करेंगे, and I will definitely make you fall in love with this subject. लिख के ले लो. हाँ, ठीक है. Okay guys, so do follow me on my Insta. You can join Telegram channel for more knowledgeable videos and all kind of information and details for the upcoming session. So share, subscribe and comment. That was it from my side guys. This is me Rachita Sachdeva signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe, stay happy. Always फिर मिलेंगे चलते चलते. Bye.